Good evening, class. Yesterday we have discussed the topic about the muscles, and in the chapter movement and locomotion, we have to discuss now the other concepts. So, this is the structure of muscle fiber you are looking at. It has a muscle. One muscle is having many fascicles, which are called muscle bundles, or these muscle bundles. There are blood vessels, as you can see. There is nerve tissue, nervous tissue as well, and each muscle bundle, muscle fascicle, is also having many muscle cells. So there are cylindrical muscle cells which cut ends or circular ends are exposed here, and few muscle cells are pulled out so as to show you they are cylindrical in shape. And on this you can see there are blood vessels here to supply the blood to get the nutritious liquid. And these muscle cells are also formed further the myofibers. These muscle cells, which are cylindrical in shape, they are also having internally, they are having the myofibrils. Such kind of thin and thick myofibrils are found here. Between two thin myofibril, thick filaments are found in the between, which are giving the muscle cells striations. So thin filaments are alternating with the thick filaments in the center. These are muscle cells, and their boundaries are called sarcolemma. Now, muscles, structure of skeletal muscles. Each skeletal muscle in our body is made of number of muscle bundles called fascicles, held together by a common collagenous connective tissue called fascia. So, in between the muscle bundles, the extracellular material is made of collagen tissue, जिसे फेशिया बोलते हैं. यहाँ पे बीच में लाइट पिंक का जो कलर का स्ट्रक्चर है उसे फेशिया बोलेंगे. And each muscle bundle contain large number of each muscle bundle contain large number of muscle fibers. Now, these contractile protein which I was talking to you are thin actin filaments and thick myosin molecule, myosin protein. So above is the image of actin filament. ये आपका एक्टिन फिलामेंट है, जिसमें आप देख रहे हो ग्रीन कलर के ये जो फिलामेंटस एफ एक्टिन मॉलिक्यूल है, ग्रीन बीड्स जैसा बना हुआ, ग्लोब्यूलर एक्टिन से बनता है. और वो जब बहुत सारे ग्लोब्यूल्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो एफ एक्टिन बना देते हैं, जिन्हें बोलते हैं फिलामेंटस एक्टिन. और ये फिलामेंटस एक्टिन केबल की तरह लगता है. उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का और पट्टी आप देख रहे हो, दैट इज द ट्रोपोमायोसिन. So this is tropomyosin, which is giving the stability to the F actin, tropomyosin. And tropomyosin के ऊपर आप और ट्रिपल स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये वाले. तो these are all troponin. इनको ट्रोपोनिन कहा गया है. तो इनको सबको मार्क करके यहाँ पर भी दिखा रखा है. आप देख सकते हो यहाँ पर 3 को ट्रोपोनिन बोल रखा है, इस ब्राउन वाले बैंड को ट्रोपोमायोसिन कहा है, और इस ग्रीन कलर के बैंड को एफ एक्टिन कहा गया है. तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. नीचे आपको हैवी फिलाम प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं. तो these are twisted tail, which are called the myosin tail. This is light meromyosin, and the heavy meromyosin are called head regions, which are having the cross arm also. And then the head region are, as you can see, is also having the ATP binding and actin binding sites. Actin binding sites are at the top, which will bind these filaments, actin filaments. सो ये दोनों आपस में एक दूसरे से ये ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, स्लाइड करते हैं. ये वाले जो एक्टिन फिलामेंट है ये स्लाइड करते हैं मायोसिन हेड्स के ऊपर. तो इसीलिए मायोसिन के ऊपर इनके लिए इनको अटैच करने की एक्टिन बाइंडिंग साइट्स होती हैं. दूसरी साइड जो मायोसिन हेड्स पे होती हैं वो एटीपी बाइंडिंग होती हैं, बिकॉज दे अटैच एटीपी हियर, एंड द एटीपेज एंजाइम्स will be breaking the ATP by ATPase activity, which will give it the energy to pull the actin
toward the center. Each actin filament is made of two filamentous actins helically wound to each other. Each F actin is a polymer of monomeric G globular actin. Two filaments, another protein, tropomyosin, also run close to the F actin throughout its length. तो ट्रोपोमायोसिन के भी फिलामेंट्स उसके पास में हैं, ये हम देख चुके ऊपर. And complex protein troponin distribution at regular interval of tropomyosin. Resting state subunit of troponin mask the active binding sites of myosin. So troponin is masking the active binding sites of myosin on actin head. Myosin is a thick filament. It's also a polymerized protein. Many monomeric protein called meromyosin constitute one thick filament. Each meromyosin has two important parts, a globular head with a short arm and a tail, the former being called heavy meromyosin. तो हेड इसका हैवी मैरोमायोसिन होता है क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है. लाइट मैरोमायोसिन टेल होती है. एंड द हैवी मैरोमायोसिन कंपोनेंट के पास हेड होता है. शॉर्ट आर्म्स होती हैं जिन्हें क्रॉस आर्म भी कहते हैं. और पॉलीमराइज मायोसिन को के उसे आर्म को क्रॉस आर्म भी बोलते हैं. ग्लोबुलर हेड उसके पास एक्टिव एटीपेज एंजाइम के लिए एक्टिव साइट होती है और बाइंडिंग साइट होती है एक्टिन फिलामेंट्स की. यहाँ पर सार्कोमियर का आप कॉन्ट्रैक्शन देख रहे हो. दो जेड लाइंस के बीच का पार्ट सार्कोमियर कहलाता है. वन कॉन्ट्रैक्शन यूनिट कहलाता है. जहां पर जेड लाइन कनेक्ट करके रख रखा है इन्होंने, जेड लाइन ने, एक्टिन्स को. एंड उन एक्टिन्स के बीच बीच में आप देख रहे हो ये एम लाइन है. ये कांस्टेंट रहती है, इसका चेंज नहीं होता, पोजीशन इसका चेंज नहीं होता. इसके ऊपर जो प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं स्ट्रेट, ये हेड्स हैं. और इन हेड्स के ऊपर ही जो एक्टिन फाइबर है वो स्लाइड करेगा, आगे की तरफ आएगा. तो पहली स्टेट रिलैक्स स्टेट है जहां पर आप देख रहे हो कि जो आई बैंड है उसका साइज छोटा इतना है एंड ओवरलैपिंग जोन का साइज इतना है. तो दिस इज ओवरलैपिंग जोन जहाँ पे दोनों फाइबर एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं. ये आई बैंड है जहाँ पर सिर्फ एक्टिन का पार्ट आ रहा है. ये ए बैंड है जहाँ पर आपको मायोसिन का पार्ट दिखता है, उसको ए बैंड बोलते हैं जहां तक मायोसिन के फाइबर होते हैं. मायोसिन में के पार्ट में भी सिर्फ उतना पार्ट जिसमें सिर्फ मायोसिन का मिड पार्ट और सिर्फ मायोसिन आए एक्टिन ना आए, उस पार्ट को एच जोन बोलते हैं. और इस एच जोन के बीच में एम लाइन होती है, मिड लाइन, जो कि इसका सेंटर होती है. अब आपको यहाँ दो सार्कोमियर दिखा रखे हैं. वन जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन तक एक सार्कोमियर होता है. जब कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल आता है, जब कैल्शियम रिलीज होता है मसल के ऊपर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर, वो कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से रिलीज होकर सार्कोप्लाज्म में आ जाता है, जहां पर वो जेड लाइन को कॉन्ट्रैक्शन शुरू करवाता है. कैसे? बिकॉज वो पहले ट्रोपोनिन के कॉम्प्लेक्स को एक्सपोज करवाता है, वो उसे हटाता है. तो एक्टिन और मायोसिन बाइंडिंग साइट्स एक्सपोज हो जाती हैं, जिसकी वजह से मायोसिन हेड जुड़ जाते हैं इन एक्टिन से. और जब एटीपी एक्टिविटी होती है तो उसके एनर्जी से इसको पुल करते हैं. आप देख रहे हो आई बैंड का साइज डिक्रीज हो रहा है, ओवरलैपिंग साइज बैंड का साइज बढ़ रहा है, और एच जोन भी डिक्रीज हो रहा है बिकॉज एक्टिन अंदर की तरफ आ रहे हैं दोनों तरफ से. तो एक्टिन फिलामेंट्स अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है. और ये फिर इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गए कि एक्टिन ओवरलैप हो गए एक दूसरे से, और बिल्कुल आई बैंड बहुत ही नेग्लेजिबल हो गया, फुल्ली ओवरलैप स्टेट हो गई, मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड. और एच जोन भी बहुत छोटा हो गया और ओवरलैपिंग जोन बढ़ गया. तो this overlapping in edge zone has reduced and overlapping has increased. I band has slightly disappeared, and here we can say that the maximum contraction is there. When the calcium ions will again be moved back to sarcoplasmic reticulum, then it will become again come in the relaxed state. यहाँ पर आपको साइकिल बताई हुई है
कि किस तरीके से आपकी साइकिल होती है मसल कॉन्ट्रैक्शन की। एटीपी जब बाइंड रहता है मायोसिन के हेड से, तब ये दूर रहता है एक्टिन फिलामेंट से, तब ये इससे नहीं अटैच होता। जैसे ही ये मायोसिन फिलामेंट से एटीपी अटैच हो, तो ये एटीपी ब्रेक हो जाता है एडीपी और पीआई में। तो यहाँ एडीपी है और ये एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल है, अब ये अटैच हो चुका है और इसने क्रॉस ब्रिज बना लिया है। क्रॉस ब्रिज बनाने से ये पूरा एडीपी के प्रेजेंस में ये टच होता है, अटैच हो पाता है और क्रॉस ब्रिज बनाकर बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है। देन क्रॉस ब्रिज, अब एडीपी और पीआई भी रिलीज होंगे, तो इसको पावर स्ट्रोक लगता है। पावर स्ट्रोक लगता है तो ये एक्टिन को और पुल करता है, स्लाइड करवाता है एक्टिन को, और फिर बाकी ब्रेक करने से, फिर वापस एटीपी जुड़ जाने से क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो जाता है। तो ये साइकिल है, जब एटीपी जुड़ा रहेगा तो क्रॉस ब्रिज ब्रेक रहेगा, एंड देन एटीपेज एक्टिविटी के बाद एडीपी और पीआई के फॉर्म में वो क्रॉस ब्रिज बनाएगा। और क्रॉस ब्रिज जब एडीपी और पीआई जब रिलीज होंगे, तब यहाँ पर वापस से पावर स्ट्रोक लगेगा, स्लाइडिंग या रोटेशन होगी, एंड देन ब्रेकिंग हो जाएगी क्रॉस ब्रिज की। तो ये स्टेजेस हैं क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, रोटेशन एंड ब्रेकिंग में। नाउ skeletal system is the second part of your chapter. स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम पढ़ने के बाद आपको स्केलेटल सिस्टम पूरा पता होना चाहिए कि 206 बोन का आपका स्केलेटल सिस्टम है। इस स्केलेटल सिस्टम में आपके दो पार्ट्स हैं बेसिकली। जो आपके सेंटर में, जो मिड लाइन में जो आपका स्केलेटल सिस्टम आता है, वो आपका एक्सियल स्केलेटन होता है। एक्सियल स्केलेटन यानी कि एक्सिस पे आने वाला, यानी आपकी बायलेटरल सिमेट्री, आपकी बॉडी लेफ्ट और राइट हाफ्स में बटी हुई है इमेजिनरी। तो एक्सिस पे जो बॉडी की मिड लाइन है, उस पे जो स्केलेटन आ रहा है, तो कौन कौन से इस रेड लाइन से मार्क है, तो क्रेनियम मार्क है, तो इसमें स्कल आता है। वर्टिब्रल कॉलम मार्क है, इसमें वर्टिब्रल कॉलम आती है, ये रही वर्टिब्रल कॉलम। और रिबकेज मार्क है, तो इसमें रिबकेज आती है, स्टर्नम आती है। तो ये चार पार्ट, वर्टिब्रल कॉलम, रिब, स्टर्नम और क्रेनियम, एक्सियल स्केलेटन बनाते हैं। तो फिर दूसरा स्केलेटन कौन सा होता है, अपेंडिकुलर। ये जो लिम्स का जो स्केलेटन है यहाँ पर, और जो हिंड लिम्स का जो स्केलेटन है यहाँ पर, ये आपका आता है अपेंडिकुलर स्केलेटन में पूरा। ये साइड वाइज का बनाता है, जैसे मैंने एक हाफ में बनाया, तो इस तरफ का भी ऐसा है, सेम मिरर इमेज इस दूसरे तरफ भी वैसा ही दे रखा है कि हाफ साइड का स्केलेटन आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है। इसमें क्या आते हैं, गर्डल्स आते हैं, जिनमें पेक्टोरल गर्डल में क्लेविका, क्लेविकल और स्कैपुला आती है, और पेल्विक गर्डल में आपका इस्चियम और प्यूबिस, इस्चियम, प्यूबिस और इलियम आती हैं। तो इलियम बोन, प्यूबिस बोन इलियम का ही आगे का पार्ट है, और इस्चियम बोन द लास्ट पार्ट। फिर आपके इसमें आर्म के, लिम्स के बोन आते हैं, जो कि ह्यूमरस से शुरू हो रहा है। फर्स्ट बोन ह्यूमरस, रेडियस अल्ना 2 बोन्स, फिर आपकी यहाँ पर 8 बोन्स, फिर 5 बोन्स, फिर 14 बोन्स, तो 30 बोन का एक सेट होता है। एंड ऐसे ही दोनों हाथों में 30-30 होता है, ऐसे 30 ही लेग्स में होता है, जिसमें फर्स्ट बोन फीमर होती है, देन नी कैप, पटेला, देन टिबिया, फिब्यूला, एंड देन 7 टार्सल्स, मेटाटार्सल्स 5, एंड phalanges 14। तो ये आपका पूरा स्केलेटन का डायग्राम है। क्रेनियम के साथ साथ फेस में आप देख रहे हो फेशियल बोन्स भी होंगी, तो जिसमें आपको मैंडिबल दिखा रखा है, मतलब आपको जॉ दिखा रखा है, मैंडिबल। और मैंडिबल इज द लोअर जॉ विच इज मूवेबल। अपर जॉ इज इमूवेबल एंड लोअर जॉ इज मूवेबल। ये स्कल की आपकी डायग्राम है, जिसमें स्कल इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स, and here this head part or brain box part, which is cranium, is made up of 8 bones, and the facial bones are 14। जो फेस में आपके बोन्स हैं वो 14 रहती हैं।
इनका नाम भी दे रखा है, स्फीनॉइड, इथमॉइड, लैक्रिमल, नेजल, जाइगोमैटिक, मैक्सिला, यानी अपर जॉ, मैंडिबल यानी लोअर जॉ, हायोइड बोन इज अ यू शेप बोन which is in the neck region. Occipital condyles are the last part of the skull which join with the first vertebral column atlas, and then occipital bone is the last or lower lobe skull, and temporal is at the temporal lobe, parietal bone is at the parietal lobe, and frontal lobe bone. Now sternum and rib cage is there. A cage-like structure is formed in which your internal organs are protected safely, and this rib cage is there, and rib cage is making a cage-like structure with protecting lungs and heart, kidneys, livers, and these are the labels of the rib cage. All the bones are shown here, and these are first thoracic vertebrae is there, and then first rib is there, jugular notch is there, clavicle notch is there. So where the clavicle bone is joining is called the clavicle notch, and then sternum is there, which is in the center. This is the sternum, which is a central bone of the rib cage, जिसमें आपकी फर्स्ट 7 रिब्स जुड़ेंगी. तो फर्स्ट 7, 1 to 7 रिब्स ट्रू रिब्स हैं, बिकॉज वो आगे पर्पल रंग के इससे स्टर्नम से जुड़ रही हैं. 1 नंबर, 2 नंबर पर्पल से दिखा रखी है, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, एंड 6 एंड 7. और आप देख रहे हो 7 के साथ 3 बोन और जुड़ रही हैं, 8, 9 और 10. 10. तो ये आपकी 8, 9 और 10 क्या है? दीज आर फॉल्स रिब्स, क्योंकि ये 7th से जुड़ रही हैं, डायरेक्टली स्टर्नम से नहीं जुड़नी, क्योंकि स्टर्नम वहां पर एंड हो जाती है जाइफॉइड प्रोसेस पे. स्टर्नम एंड्स, सो ये 7th से आके जुड़ जाती हैं, 8th, 9th, 10th. तो इसलिए इनको फॉल्स रिब कहते हैं. और जहां पर 11th और 12th तो आके जुड़ती ही नहीं है कहीं, बस पीछे ही जुड़ी रहती है. तो 11th और 12th आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि वो फ्लोट हो रही हैं. 12th thoracic vertebrae और फर्स्ट लंबर वर्टी, 12th thoracic vertebrae लंबर शुरू हो जाती है, लंबर वर्टिब्रल कॉलम शुरू हो जाती है. यहाँ पर एक और बार आपको दिखा रखा है. देन कोस्टल कार्टिलेजेस बताई हुई हैं कि रिब्स के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं वो कार्टिलेजेस के बने हुए होते हैं. ट्रू रिब्स को वही 1 to 7 पेयर जो रिब्स हैं वो ट्रू रिब्स हैं. 12 पेयर में से फर्स्ट 7 पेयर्स ट्रू रिब्स कहलाती हैं. 8, 9, 10 क्योंकि 7 से जुड़ी रहती है तो वो फॉल्स रिब कहलाती है. 11th और 12th फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं. Cervical vertebrae is the first 7 vertebrae in the vertebral column is cervical. Then the 12 pair are called thoracic vertebrae. Then the 12 bones are thoracic, and then lumbar part is there in the lumbar region. In then intervertebral disc are having the cartilaginous joint. Sacrum is one and coccyx is one. So formula of the vertebral column becomes C7, T12, lumbar 5, L5, and sacrum it is having 1 and coccyx is having 1. So this is the formula for the vertebral column. You should learn this formula. Then coming to, this is the structure. Now coming to the pectoral girdle and the upper arm. Pectoral girdle, as you can see, you are finding the front bone, which is the collar bone, is the clavicle, and the backward there is a triangular bone called as a scapula, which is a shoulder blade. And in the front, the clavicle bone is having articulation with the humerus, first bone, and then humerus is having articulation or joining with the radius and ulna in the lower arm. Then in the wrist there are 8 carpals, then there are 5 metacarpals, phalanges.
This way you have to learn by making this diagram. Then pelvic girdle, ilium, coaxial bone, that is having three bones, ilium, pubis, and sacrum, is joined with the femur head. Femur is the heaviest and longest bone. Then we have kneecap, patella. Then lower leg is having tibia and fibula. Then in the ankle there are tarsals, metatarsals, and phalanges. Now, disorder of muscular and skeletal system is Myasthenia gravis. Autoimmune disorder है ये. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन सही से काम नहीं करने की वजह से फैटीग रहती है, वीकनिंग हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है स्केलेटल मसल्स को. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर्स. टेटनी, रैपिड स्पैज्म, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन मसल ड्यू टू लो कैल्शियम होने की वजह से बॉडी फ्लूइड में बहुत जल्दी जल्दी आपकी बॉडी की मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं. अर्थराइटिस में आपके इन्फ्लेम हो जाते हैं जॉइंट. ऑस्टियोपोरोसिस में एज रिलेटेड डिसऑर्डर आ जाते हैं जिनसे कि बोन मास कम हो जाता है, फ्रैक्चर्स के लेवल बढ़ जाते हैं, डिक्रीज लेवल हो जाता है एस्ट्रोजन का. कॉमन कॉज है ऑस्टियोपोरोसिस का गॉट, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स को गॉट कहते हैं. accumulation ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल. फिक्स जॉइंट जो आपके स्कल में दिखाई दे रहे हैं आप एग्जांपल, इनको सटर्स भी बोलते हैं. कार्टिलेजिनस जॉइंट वर्टिब्रल डिस्क में होते हैं. और सिनोवियल जॉइंट्स बोन्स, उन बोन्स में होते हैं जो कि जिनके अंदर सिनोवियल मेम्ब्रेन होती है एंड सिनोवियल फ्लूइड भरा हुआ होता है, वो 360 डिग्री मूव कर सकते हैं. गर्दन में आपके पिवट जॉइंट होता है एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपका सिनोवियल जॉइंट है. हिंज जॉइंट आपका एक ही तरफ डायरेक्शन में एक एंगल में ही मूव कर सकता है जैसे आपकी एल्बो का जॉइंट है. सैडल जॉइंट जो आपका थंब में है वो सैडल जॉइंट है, वो लेफ्ट राइट वाइज चल सकता है. ग्लाइडिंग जॉइंट जो आपके रिस्ट में जो ग्लाइड कर सकते हैं उन्हें ग्लाइडिंग जॉइंट बोलते हैं. कॉन्डलॉइड जॉइंट्स आपके फिंगर्स में है. सो बॉल एंड सॉकेट, पिवट, एलिप्सोइड, नी, हिप, ये सब जॉइंट्स हैं आपके. So with fibrous joints are there which are very fixed to each other. They are found in the skull. Fibrous joint immovable होते हैं. डिस्क ओल्ड फाइबर डिस्कॉइड फाइब्रो कार्टिलेज बीच बीच में आप देख रहे हो एक एक वर्टिब्री के बीच बीच में डिस्क शेप का कार्टिलेज जॉइंट कर रहा है एंड दिस इज कॉल्ड कार्टिलेजिनस जॉइंट. वर्टिब्रल कॉलम के बीच में ये होता है. एंड सिनोवियल जॉइंट का आपको डायग्राम दिखा रखा है. दो बोन्स हैं, दो बोन्स के बीच में कैविटी है, उस कैविटी में सिनोवियल आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज लगा हुआ है ब्लू कलर का एंड सिनोवियल मेम्ब्रेन है. सिनोवियल मेम्ब्रेन सिनोवियल फ्लूइड बनाती रहती है. जॉइंट कैविटी विद फिल्ड विद द सिनोवियल फ्लूइड. ये सिनोवियल फ्लूइड है जो यहाँ पर फिल्ड है जॉइंट की कैविटी में और जॉइंट का कैप्सूल है ये और आर्टिकुलेशन कार्टिलेज यहाँ पर ग्रीन कलर का दोनों तरफ लगाया रखा है, बीच में फ्लूइड है. तो ये बहुत फ्रीली मूवेबल जॉइंट होते हैं बिकॉज ऑफ द फ्लूइड. एंड क्लेविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस, अल्नस, रेडियस, कार्पल, मेटाकार्पल्स, फेलेंजेस. पेक्टोरल गर्डल की पोजीशन दिखा रखी है. बैक आगे क्लेविकल आती है, पीछे स्कैपुला जाती है. स्कैपुला के प्रोसेसेस बता रखे हैं. स्कैपुला का स्पाइन है, स्कैपुला का एक्रोमिनियम प्रोसेस है एंड ग्लेनोइड कैविटी है स्कैपुला में जहाँ पर रेडियस सॉरी ह्यूमरस का हेड लगेगा. सो यहाँ पर आपको ये आपकी स्लाइड पूरी हुई, आपका चैप्टर पूरा हुआ. मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटन हमने इसमें डिस्कस किया, सारे बोन्स डिस्कस किया. आपको ये डायग्राम बनाकर और बुक से एनसीईआरटी में डायग्राम दिए हुए हैं वो बनाकर आपको ये चैप्टर अपना खत्म करना है. सो आई वॉज विद यू हेमलता यादव. आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा अच्छे से एंड आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन. आपको ये पूरा समझ में आया, मसल्स के जो प्रोटीन्स थे वो समझ में आया, मसल कॉन्ट्रैक्शन समझ में आया और उसके साथ साथ आपको स्केलेटल सिस्टम के पार्ट समझ में आए. स्कल की बोन और रिब केज, वर्टिब्रल कॉलम, पेक्टोरल, पेल्विक गर्डल और जॉइंट्स के बारे में आपको पता चला. सो if you like the video please hit the like button and learn